بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آندھرا پردیش انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے وہ اسٹوڈینٹس جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے ان کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں. یہ یاد رکھیں یہ ویڈیوز آندھرا پردیش کے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے, تلنگانہ کے اسٹوڈینٹس کے لیے نہیں ہے. بورڈ آف آندھرا پردیش انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے وہ اسٹوڈینٹس جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے ان کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں. 2 ویڈیو ہے گیس ماڈل پیپر کے. یہ تو سیٹ اے ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, یہ سیٹ اے ہے, اور ایسے ہی سیٹ بی بھی ہے. اگر آپ یہ 2 پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے فائنل ایگزام میں بلکہ ہر ایگزام میں آپ کو آسانی ہوگی. ابھی ہم زوم کر کے بھی پڑھیں گے. اس سے پہلے چند باتیں یہ کہنا ہے کہ آپ کو عربک پیپر میں زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عربک میں کہیں پر بھی کسی بھی کوشچنس میں زبر زیر پیش لگانا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہنا ہے کہ بٹ نمبر 2 اور بٹ نمبر 3 اور بٹ نمبر 1 کا ایکسپلینیشن, بٹ نمبر 2 اور بٹ نمبر 3 دونوں میں ہی اون لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. یا تو اردو میں لکھیں یا عربک میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں. پیپر میں کہیں بھی رومن اسکرپٹ یوز نہ کریں. جب بٹ نمبر 2 اور بٹ نمبر 3 آئے گی میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا. تو چلیے ہم شروع کریں گے. تو یہ ہے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر سیکنڈ لینگویج عربک گیس ماڈل پیپر. یہ سبجیکٹ عربک ہے, مارکس 100 ہے اور ٹائم آپ کو 3 گھنٹے رہے گا. یہ سیٹ اے کا ہے. یہ میں نے گیس پیپر بنایا ہے. تو یہ بٹ نمبر 1 ہے اور اس میں کوشچنس بھی ہے اور اس کے آنسر بھی ہیں. اجب عن احد مما یاتی, اٹمپٹ اینی ون آف دا فالوئنگ. یہ کوشچنس میں ایسا لکھا رہے گا. کوشچن میں الحمدللہ ڈیش الجسد الحمد و ڈیش الصمد. یہ کچھ یہ ورسز ہیں. ورسز کے کچھ ورڈ ڈیلیٹ ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر کون سے ورڈ ڈیلیٹ ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے. اس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے یہاں پہ اس کا آنسر لکھا ہوا ہے, دیکھیے الحمدللہ العلی هو الاحد وهو المنزہ عن الشبیہ والجسد. یہ منزہ ہے, منزہ نون آنا ہے نون کے بعد. الحمد والتسبیح والتمجید فی الازمان والاکوان للہ الصمد. یہ پورا شعر ہے. یہ اس میں سے کچھ ورڈ ڈیلیٹ رہیں گے, اس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ریڈ میں جو لکھا ہوا ہے وہ کوشچن ہے اور یہ آنسر ہے. اس طرح کے 2 ورسز آئیں گے, 2 میں سے کوئی ایک ورس آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ تھا نمبر, یہ تھا اے اور اس کے بعد ہے بی. بی میں ہے, یہاں پہ آپ کے آسانی کے لیے 3 لکھے گئے ہیں لیکن آئیں گے 2. مگر بی ہے خلق الالہ ڈیش, اس کے بعد پھر ڈیش ولبرہ خلق العوالم ڈیش ڈیش وبحورہ. اس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ نیچے آنسر لکھا ہوا ہے خلق الالہ نبیہ من نورہ هو رحمت لسمائہ وبحورہ خلق العوالم من ضیاء المصطفى من ارضہ وسمائہ وبحورہ. اس کے بعد سی ہے قرآننا ڈیش ڈیش ودین نزل بہ ڈیش ڈیش العالمین. اس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں پہ آنسر لکھا ہوا ہے قرآننا دستورنا یصلحنا دنیا ودین نزل بہ الروح الامین بامر رب العالمین. یہ اس کا آنسر ہے. ان تینوں میں سے جو ابھی پڑھے گئے ہیں ان تینوں میں سے کوئی 2 آئیں گے, آپ کو ایک کا آنسر لکھنا ہے.
तो ये थी बिट नंबर 1। उसके बाद बिट नंबर 2, बिट नंबर 2 समरी लिखना है। समरी ओन लैंग्वेज में लिखना है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। चाहे आप उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें या अरबिक में लिखें, लेकिन रोमन में हरगिज ना लिखें। तो 3 पोएम है, अल मजदुलिल्लाह, मदीहुर रसूल, दुस्तूरुना। आपके उस्ताद मोहतरम ने अगर आपको पोएम लिखाई है या पढ़ाई है तो आपको जो पढ़ाया गया, लिखाया गया वो पोएम लिखे, उसकी समरी लिखे। यहाँ पर आपके आसानी के लिए समरी लिख दी गई है। अगर आपको सहूलत हो तो ये भी आप समरी लिख सकते हैं। आप इसको स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। ये है समरी फर्स्ट पोएम की। उसके बाद सेकेंड पोएम है मदीहुर रसूल। मदीहुर रसूल ये उसकी समरी है। ये उसके बाद तीसरी पोएम है दुस्तूरुना। ये उसकी समरी है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये थी बिट नंबर 2 जिसमें समरी आपको लिखना है। 3 पोएम में से किसी एक पोएम की समरी लिखना है ओन लैंग्वेज में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बिट नंबर 3 ये भी समरी ही है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इन योर ओन लैंग्वेज। ये समरी भी ओन लैंग्वेज में लिखना है। उर्दू में लिखें, अरबिक में लिखें या इंग्लिश में लिखें, रोमन में हरगिज ना लिखें। यहाँ पे देखिए, एक है सूरह इखलास, दूसरी अमीरुल मिसाली, तीसरी है आसारुल हिंद। ये 3 लेसन है, एक सूरा है। आपसे गुजारिश है कि ये भी मॉडल पेपर देखें, और एक है सेट बी जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देखें। तो सबसे पहले सूरह इखलास की समरी। उसके बाद है अमीरुल मिसाली की समरी, दूसरा लेसन है ये। शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको ये लेसन पढ़ा दिए हों। अगर लेसन ना पढ़ाएं तो आप समरी पढ़कर वो लेसन समझ जाएं, क्योंकि ये तो गेस्ट पेपर है, इसमें हम समरी नहीं समझा सकते, लेसन नहीं समझा सकते हम। उसके बाद तीसरा लेसन है आसारुल हिंद। बहुत आसान लेसन है, और आप समरी लिखने का तरीका यह है कि कुछ पॉइंट अपने जहन में बिठा लें और उन्हीं पॉइंट के मुआफिक पूरी समरी लिखें। एज इट इज समरी लिखना, याद करना मुमकिन नहीं है। ये थी बिट नंबर 3 जिसमें आपको समरी लिखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में नॉन डिटेल के क्वेश्चंस आएंगे। बिट नंबर 4 में नॉन डिटेल के क्वेश्चंस आएंगे। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। अरबिक में लिखना है, 6 मार्क्स की बिट है। क्वेश्चन नंबर 1, हल अल फील हैवानुन तवील। हल के माने क्या, फील के माने हाथी, हैवान माने जानवर, तवील माने बड़ा। क्या हाथी बड़ा जानवर है? तवील के माने लंबा, लंबे के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा करेंगे। क्या हाथी बड़ा जानवर है? हल आ गया तो उसका आंसर नाम होगा। हल हटाना है, नाम लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। नाम अल फील हैवानुन तवील। हाँ, हाथी बड़ा जानवर है। सेकंड क्वेश्चन है अयना हलका अब्रहा। अयना के माने कहा, हलाका माने हलाक हुआ, बर्बाद हुआ, अब्रहा नाम है बादशाह का।
अब्रहा कहाँ हलाक हुआ, ये आईना क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। हलाका अब्रहा फी अल यमन, हलाका माने हलाक हुआ, अब्रहा नाम है, फी के माने में, अल यमन, यमन माने एक कंट्री का नाम है यमन, यमन में अब्रहा हलाक हुआ। मिन ऐना खरजा अब्रहा, मिन ऐना कहां से, खरजा निकला, अब्रहा नाम, अब्रहा कहां से निकला, अब्रहा कहां से निकला। उसका आंसर भी बहुत आसान है, देखिए मिन ऐना हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। खरजा अब्रहा मिन अल यमन, मिन के माने से, अल यमन कंट्री का नाम है। खरजा अब्रहा मिन अल यमन, अब्रहा यमन से निकला। क्वेश्चन नंबर 4, माजा अरादा अब्रहा, माजा अरादा अब्रहा, माजा के माने क्या, अरादा के माने इरादा किया, अब्रहा नाम। अब्राहतु है, लेकिन जब हम खाली ऐसे ही पढ़ेंगे बगैर जबर जेर पेश के तो अब्राहा पढ़ते हैं इसको। अब्राहा का क्या इरादा था, उसने क्या इरादा किया, ये माजा क्वेश्चन में हटा दे, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करें। अरादा अब्राहा हदम अल काबा, हदम गिराना, काबा काबा, काबे को गिराने का इरादा किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, मन खाला ला तस्खर मिन्नी, मन माने कौन, खाला माने कहा, ला तस्खर मिन्नी आप मेरे साथ मजाक मत करो, ये सेंटेंस किसने कहा। देखिए आंसर, मन हटा दीजिए, मन की जगह पे अल अजीर लिखना है, मजदूर, अल अजीर, अजीर ने कहा, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करना है। खाला ला तस्खर मिन्नी, अजीर ने कहा मेरे साथ मजाक मत करिए। अगर आप लेसन पढ़ चुके हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मन काना अब्रहा, मन माने कौन, काना माने था, अब्रहा नाम, अब्रहा कौन था, ये मन हटा दीजिए, क्वेश्चन वर्ड है, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करना है। काना अब्रहा मलिक अल यमन, मलिक माने बादशाह, यमन कंट्री का नाम है, यमन का बादशाह था। ये थी बिट नंबर 4, इसमें आपको नॉन डिटेल के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें आपको किसी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है और 6 मार्क्स की बिट है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। तो ये थी बिट नंबर 4। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 5। बिट नंबर 5 बहुत आसान है और माशाल्लाह ये 6 मार्क्स की बिट है। देखिए आप 6 मार्क्स की बिट है, बहुत ही आसान है। आपसे गुजारिश है कि आप पूरे बिट लिखें, कोई बिट ना छोड़ें। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। इस बिट में पोयम के कुछ क्वेश्चंस, पोयम के कुछ वर्सेस आएंगे, वर्सेस में कुछ अशार लिखे हुए रहेंगे, वो अशार कौन सी पोयम के हैं ये पहचानना होगा। शायद आपको बात समझ में आ गई। बिट नंबर 5 में आपके जो पोयम है, पोयम के कुछ वर्सेस यानी अशार लिखे हुए रहेंगे, वो अशार कौन से पोयम के हैं ये आपको पहचानना है और पहचान कर आंसर लिखना है इस तरीके से। अच्छा कैसे पहचानेंगे, इंशाल्लाह आखिर में मैं उसकी हिंट भी बताऊंगा तो उसको पहचानने का तरीका क्या है। पहले हम ये अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वर्स है, एक शेर है, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाएगा, आपकी जिम्मेदारी है, अब आपको पहचानना होगा कि ये शेर कौन सी पोयम का है, नंबर 1 पोयम का है, नंबर 2 उस पोयम का नाम क्या है वो लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे आंसर आपको इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन नजम अल मजदुलिल्लाह, हाजा अशेर ये शेर, मिन अन नजम, मिन माने का, नजम माने पोयम, ये शेर फला पोयम का है। उसके बाद पोयम का नाम लिखना है, अल मजदुलिल्लाह, अल मजदुलिल्लाह, इस पोयम का नाम है अल मजदुलिल्लाह। उसके बाद एक सेकेंड वर्ड से देखिए, खुलिक़ल अवालिम मिन ज़ियाइल मुस्तफ़ा मिन अर्ज़िही व समाइही व बुहूरिही। ये शेर है, अब आपको पहचानना होगा कि ये शेर कौन सी पोयम का है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आंसर है इसका,
हाजा अशेर मिन अन-नज़म मदीहुर रसूल। हाजा माने ये, शेर माने शेर, मिन नज़म नज़म का है, ये शेर फला नज़म का है, उसका नाम लिखना है। मदीहुर रसूल, मदीहुर रसूल एक पोयम का नाम है, उस पोयम का ये शेर है। उसके बाद तीसरा वर्ष है, तीसरा शेर है, कुरआनुना दुस्तूरुना युस्लिहुना दुनिया व दीन। अब आपको पहचानना है कि ये शेर कौन सी पोयम का है। यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है, हाजा अशेर मिन अन-नज़म दुस्तूरुना, ये शेर फला पोयम का है। उसके बाद उस पोयम का नाम लिखना है, उस पोयम का नाम है दुस्तूरुना। तो ये अशार्थ है, जिसको ये वर्सेस हैं, इसको आप पहचानना होगा कि ये वर्सेस, ये अशार कौन सी पोयम के हैं। उसके बाद इस तरह आंसर लिखना है। आंसर यहां तक हर एक का एक ही रहेगा, हाजा अशेर मिन अन-नज़म, सिर्फ पोयम का नाम चेंज करना है। शायद आपको बात समझ में आ रही है। अगर समझ में ना आए या आए तो कमेंट्स में जरूर लिखना। उसके बाद 6 है, अलहम्दु व तस्बीह व तमजीद फी अल अज़मान वल अकवान लिल्लाहि समद, ये फर्स्ट पोयम का ही। खुलिक़ल अवालिम मिन ज़ियाइल मुस्तफ़ा मिन अर्ज़िही व समाइही व बुसूरी, ये डबल आ गया यहाँ पर भी। अब मैं आपको एक हिंट बताऊंगा, आपको पूरे पोयम के वर्सेस याद करने की जरूरत नहीं है। एक हिंट बताऊंगा, जिस हिंट के जरिए से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा शेर कौन सी पोयम का है। तो चलिए, 3 पोयम आपको इस पेपर में, सेट ए में 3 पोयम के पहचानने का तरीका बताया जाएगा। फर्स्ट वन पोयम का नाम है अल मजदुलिल्लाह, सेकेंड वन पोयम का नाम है मदीहुर रसूल, उसके बाद पोयम का नाम है दुस्तूरुना। अल मजदुलिल्लाह में जितने भी वर्सेस हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी होने दो, उन तमाम वर्सेस का लास्ट लेटर दाल है। उन तमाम वर्सेस का लास्ट लेटर दाल है। ये है, देखिए लास्ट लेटर, इसको नहीं कहेंगे, ये पूरा एक शेर है। ये जो सेकेंड वन है ना, सेकेंड वन पैरा, सेकेंड वन सेंटेंस है, उस सेंटेंस का लास्ट लेटर दाल अगर है तो समझना वो पोयम है अल मजदुलिल्लाह। तो आप दाल आते ही समझ सकते हैं आसानी से कि ये पोयम अल मजदुलिल्लाह का वर्स है। शायद बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकेंड पोयम का नाम है मदीहुर रसूल। मदीहुर रसूल में जितने भी वर्सेस हैं, उन तमाम वर्सेस का लास्ट लेटर गोल हा है, छोटी हा। ये छोटी हा आते ही समझना चाहिए कि ये पोयम है मदीहुर रसूल। शायद ये भी समझ में आ गया आपको। मदीहुर रसूल के सारे पोयम के सारे वर्सेस के आखिर में इस तरह हा आती है। उसके बाद तीसरी पोयम है दुस्तूरुना। दुस्तूरुना में जितने भी वर्सेस हैं, उन तमाम वर्सेस का लास्ट लेटर नून है। नून आते ही आप समझना चाहिए कि ये पोयम है दुस्तूरुना। तो ये वर्सेस, ये शेर भी फर्स्ट वन पोयम का है, कैसे पहचानेंगे, लास्ट में दाल है। और ये पोयम, ये वर्स सेकेंड पोयम का नाम है, कैसे पहचानेंगे, हा के जरिए से। शायद आपको बात समझ में आ गई। आप अगर याद रखना चाहते तो लिख भी ले एक मर्तबा। अल मजदुलिल्लाह को पहचानने का तरीका ये है कि इसके सारे अशार के आखिर में दाल आता है। मदीहुर रसूल, इस पोयम के पूरे अशार के आखिर में छोटी हा आती है। दुस्तूरुना, इस पोयम के आखिर में लास्ट लेटर नून आता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा शेर कौन सी पोयम का है। उसके बाद आपको आंसर लिखना आसान हो जाता है। इस आंसर की आप कम से कम 25 टाइम प्रैक्टिस कर लें। तो ये थी बिट नंबर 5, जिसका आपको रेफरेंस देना है, यानी पोयम का रेफरेंस देना है। शायद आपको बिट नंबर 5 अच्छी तरह समझ में आ गई है। ये बिट नंबर 5 6 मार्क्स की है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आगे है बिट नंबर 6। बिट नंबर 6 ये भी 6 मार्क्स की है, और ये भी बिट नंबर 6 भी रेफरेंस की है। लेकिन फर्क ये है कि बिट नंबर 6 में लेसन्स का रेफरेंस है, और बिट नंबर 5 जो पढ़े थे हम, वो पोयम का रेफरेंस था। तो चलिए हम बिट नंबर 6 पढ़ेंगे अभी।
give the reference any two of the following sentence in Arabic. इसमें सूरह की आयतें भी आ सकती और लेसन्स के कुछ लाइन भी आ सकते हैं। आपको पहचानना होगा कि वो कौन से सूरह की आयत है या वो कौन से लेसन का लाइन है, कौन से लेसन की लाइन। तो सबसे पहले देखिए अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, ये कौन से सूरह की? 4 सूरह रहेंगे, वो 4 सूरों में से ही आयतें आएंगी। अल्लाहु समद, हाज़िही अल आया मिन सूरती अल इखलास, ये आयत सूरह इखलास की है। उसके बाद सेकंड वन है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, हाज़िही अल आयत मिन सूरतिल अस्र, हाज़िही माने ये, आयत माने आयत, मिन सूरा फला सूरह की है, ये आयत फला सूरह की है। उसके बाद सूरह का नाम लिखना है, सूरह अल अस्र। थर्ड वन जा मर्रतुन वफ्द, जा मर्रतन वफ्द मिन अहले हिम्स इला उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये एक लेसन की लाइन है, आपको पहचानना है, पहचान के इस तरह आंसर लिखना है। हाजा अस्सतर, हाजा माने ये, अस्सतर, सतर माने लाइन, मिन अद्दर्स लेसन की है, ये लाइन फला लेसन की है। उसके बाद लेसन का नाम लिखना है, अमीरुल मिसाली। बास किताबों में हाज़िही अल इबारत भी लिखा हुआ रहता, कोई फर्क की बात नहीं है, आप सतर भी लिख सकते हैं, इबारत भी लिख सकते हैं, उखिदत लिखना, उखिदा लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है, ये आसान तरीका है। हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स, इस लेसन का नाम है अमीरुल मिसाली। उसके बाद और एक सेंटेंस है युसाफिरुन नासु अल हिंद मिन अमाकिन बईदा, ये एक लेसन की लाइन है, आपको पहचानना है कि ये कौन से लेसन की है। जब आप पहचान लेंगे तो पहचान के इस तरह आंसर लिखना है, हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स आसारुल हिंद, ये आसारुल हिंद एक लेसन है, उस लेसन की इबारत है ये। उसके बाद और एक है क्वेश्चन, फक़ाल उमर अमीरुकुम फ़क़ीरुन क़ालू नअम वल्लाह ला तुक़दु अन्नारु फ़ी बैतिही लिल अय्याम अत-तवीला, ये भी एक लेसन की है। उस लेसन का नाम क्या है? पहचान कर आपको इस तरह आंसर लिखना है, हाजा अस्सतर मिन, हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स अमीरुल मिसाली। तो ये थी बिट नंबर 6, जिसमें आपको रेफरेंस लिखना है लेसन्स का या सूरों का, जैसा कि अभी आप पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 7। बिट नंबर 7 जी, ये है बिट नंबर 7। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक, अरबिक में किसी क्वेश्चन के आंसर लिखिए, और ये बिट भी 6 मार्क्स की है, ये बिट भी बहुत आसान है, 6 मार्क्स की है। तो चलिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, लिमन अत-तस्बीह व तमजीद, लिमन किसके लिए, तस्बीह व तमजीद दोनों के माने भी तारीफ है, तारीफ किसके लिए? तो उसका आंसर है लिमन, क्वेश्चन में हटा दें आप, लिमन क्वेश्चन में हटा के सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करना है, अत-तस्बीह व तमजीद सेम है, ऊपर भी क्वेश्चन में वही है, आखिर में एक वर्ड बनाना है लिल्लाह, अल्लाह के लिए, तस्बीह और तमजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, लिमन क्वेश्चन नंबर 2, लिमन अल मजदू, लिमन किसके लिए, अल मजद बड़ाई बुजुर्गी किसके लिए है, ये लिमन क्वेश्चन में हटा दे, क्वेश्चन कॉपी करें, अल मजदू लिल्लाह, बड़ाई और तारीफ किसके लिए है, बुजुर्गी अल्लाह के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, मा हिया सिफातुल्लाह तआला, मा हिया, मा के माने क्या, हिया के माने है सिफात, अच्छाइयां, अल्लाह की सिफात, अल्लाह ताला की सिफात क्या है, अल्लाह ताला की अच्छाइयां क्या क्या है, अल अली, अल अहद, अर रहमान, आप वो भी लिख सकते हैं, अगर ये याद नहीं आ रहा, अल अली अल अहद याद नहीं आ रहा,
तो सूरह फातिहा तो सबको याद रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दूसरी आयत है, अर्रहमान अर्रहीम ये दो भी लिख सकते हैं आप, वो भी अल्लाह के सिफात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मन हुआ साहिबुल मेराज। मन हुआ साहिबुल मेराज, मन माने कौन, हुआ माने है, साहिबुल मेराज, मेराज माने वाले, मेराज मेराज को कहते हैं, मेराज वाले कौन है। देखिए बहुत आसान है, मन हटा दीजिए, अन नबी लिखना है, अन नबी, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ साहिबुल मेराज। बाकी सब क्वेश्चन कॉपी करना है। एक बात याद रखें, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरा लिखना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें, अगर नहीं आता तो शॉर्ट में लिख सकते हैं स्वाद, स्वाद भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर वो भी नहीं आ रहा, खुदा ने खासा बेहतर है दोनों में से कोई एक लिखे, नहीं आ रहा तो सिर्फ अन नबी लिखे, काफी हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, बिअय्यि शैइन खलक़ल्लाहु तआला नबियहु, बिअय्यि शैइन किस चीज से, खलक़ा पैदा किया, अल्लाह अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया, नबियहु अपने नबी को, अल्लाह ताला ने अपने नबी को कैसे पैदा किया। ये क्वेश्चन वाला बिअय्यि शैइन इसको हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। खलक़ल्लाहु तआला नबियहु मिन नूरी, मिन नूरी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने नूर से पैदा किया, अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने नूर से पैदा किया। क्वेश्चन नंबर 6, मा हिया अस्सिफतुल खास्सा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा के माने क्या, हिया के माने है अस्सिफतुल खास्सा, खास सिफत, लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सिफत क्या है। उसका आंसर देखिए, हुआ साहिबुल मेराज, हुआ वो, साहिबुल मेराज मेराज वाले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब मेराज है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सिफत है। उसके बाद ये थी बिट नंबर 7 जो अभी आप पढ़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 8। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। ये भी 6 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चंस आएंगे लेसन्स के। बिट नंबर 7 में क्वेश्चंस थे पोयम के, और बिट नंबर 8 में क्वेश्चंस आएंगे लेसन के। क्वेश्चन नंबर 1, कम आयतन फी सूरतिल फातिहा, कम आयतन कितनी आयतें हैं, फी सूरतिल फातिहा, फी के माने में सूरह फातिहा नाम, सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं, कम हटा दीजिए, सबउन लिखना है, सबउन के माने 7, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। सबउ आयात फी सूरतिल फातिहा, सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मा माना अल कौसर, माँ के माने क्या, माने के माने मीनिंग, कौसर एक लफ्ज है, कौसर के मीनिंग क्या है। माँ क्वेश्चन मार्क हटा दे, माना अल कौसर अल खैर अल कसीर, कौसर के माने बहुत ज्यादा अच्छाई के है, खैर कसीर के है, बहुत ज्यादा भलाई के है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमन आता अल्लाहु अल कौसर, लिमन माने किसको, आता माने अता करे, अल्लाह माने अल्लाह, कौसर तोहफा, बहुत ज्यादा भलाई अल्लाह ने किसको अता की। ये लिमन क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। आता अल्लाहु अल कौसर लि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है, नाम से पहले ली लगा दीजिए, ली के माने को या लिए, अल्लाह ने कौसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मन सईद इब्न आमिर, मन माने कौन, सईद इब्न आमिर नाम, सईद इब्न आमिर कौन है। आंसर, सईद इब्न आमिर अमीर हिम्स, सईद इब्न आमिर हिम्स के अमीर है, अमीर लीडर है, हिम्स शहर का नाम है, वहां के गवर्नर थे हजरत सईद इब्न आमिर। क्वेश्चन नंबर 5, माजा क़ाल अन्नास अन अमीरिही, माजा माने क्या, क़ाला के माने कहा, अन्नास माने लोग, अन अमीरिहिम अपने लीडर के बारे में, अपने गवर्नर के बारे में लोगों ने क्या कहा। माजा हटा दीजिए, क़ाल अन्नास अन अमीरिहिम अमीरुना फकीर,
لوگوں نے کہا اپنے امیر سے کہ ہمارے امیر فقیر ہیں، ہمارے امیر فقیر ہیں. فقیر کے معنی عربک میں غریب کے آتے ہیں، وہ فقیر ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے، سوری کوشچن نمبر 6 ہے، کم دینارن اعطاہ عمر بن الخطاب. کم کے معنی کتنے، دینار کے معنی دینار، کتنے دینار اعطاہ عطا کیے عمر بن خطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے دینار عطا کیے. یہ کم ہٹا دیجیے، الف لکھنا ہے، الف پڑھتے ہیں، اگر آپ یاد رکھنے کے لیے الف بھی یاد رکھتے ہیں، الف اسی طرح، لیکن ہے یہ الف. الف دینار اعطاہ عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 1000 دینار دیے تھے. تو یہ تھی بٹ نمبر 8 جو 6 مارکس کی بٹ تھی، جس میں کوشچنز کے لیسنز کے کوشچنز آئے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے بٹ نمبر 9. بٹ نمبر 9 یہ 1 ورڈ کوشچن صحیح ہے، سوری آنسر 1 ورڈ میں لکھنا ہے، آنسر 1 ورڈ میں. بٹ نمبر 9 میں آپشنز نہیں آئیں گے، یہ پوئم کے کوشچن سے، اس کا آنسر 1 ورڈ میں دینا ہے. دیکھیے کوشچن نمبر 1، من ہوا المنزہ عن الشبیہ والجسد. من مانے کون، ہوا مانے ہے، منزہ مانے پاک، منزہ پاک. عن الشبیہ والجسد، عن کے معنی سے شبیہ جسم، شبیہ شکل، جسد مانے جسم، جسم اور شکل سے کون پاک ہے، اس کا آنسر ہے اللہ. بس اتنا ہی لکھنا ہے اور کچھ نہیں. یہ پورا کوشچن بھی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. کوشچن نمبر 2، من ہوا فی قلبی. من مانے کون، ہوا مانے ہے، فی کے مانے میں، قلب مانے دل، میرے دل میں کون ہے، اس کا آنسر بھی ہے اللہ. کوشچن نمبر 3، لمن الحمد. لمن مانے کس کے لیے، حمد مانے تعریف، تعریف کس کے لیے ہے، یہاں پر بھی اللہ، تعریف اللہ کے لیے. یہاں پہ للہ لکھیے آپ، للہ، اللہ نے الف ہٹا کے لکھے للہ، اللہ کے لیے. کوشچن نمبر 4، حل اللہ خالقنا و رازقنا. حل آ گیا، اس کا آنسر نام. میننگ دیکھیے، حل مانے کیا، اللہ مانے اللہ، خالقنا ہم کو پیدا کرنے والا، و رازقنا ہمیں رزق دینے والا. کیا اللہ ہمارا خالق اور ہمارا رازق ہے، یعنی کیا اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ ہم کو رزق دیتا ہے، اس کا آنسر ہے نعم، ہاں. کوشچن نمبر 5، ما ہوا نطق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، نطق معنی گفتگو، بات. النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا تھی، القرآن. یہاں پہ الحدیث آنی چاہیے، یہاں پہ الحدیث آنا چاہیے، القرآن نہیں. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام الحدیث ہے. الحدیث دیکھیں اس طرح لکھیں گے جس طرح میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں. ہاں جی، یہاں پہ نہیں لکھ سکا میں، آپ حدیث دیکھ لیجئے یا کہیں آیا تو میں بتاؤں گا. الحدیث لکھنا ہے، القرآن غلط ہے، القرآن نہیں الحدیث. کوشچن نمبر 6، کوشچن نمبر 6، کیف خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیف خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیف مانے کیسا، خلق مانے اخلاق. النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، عظیم، شاندار، بلند تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند تھے. یہ تھی بٹ نمبر 9 جس میں پویم کے کوشچنس آئیں گے، آپ کو ایک ہی ورڈ میں آنسر لکھنا ہے. اس کے بعد بٹ نمبر 10 ہے، یہ بٹ بھی کوشچن نمبر بٹ نمبر 10 بھی 1 ورڈ کی ہے، لیکن یہ بٹ اس میں کوشچنس آئیں گے لیسنز کے. دیکھیے آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان 1 ورڈ، یہ بھی 5 مارکس کی ہے. کوشچن نمبر 1،
لیکن یہ لیسنز کے کوشچنس رہیں گے. من ہوا فی الخسران, من مانے کون, ہوا مانے ہے, فی کے مانے میں, الخسران مانے نقصان. نقصان میں کون ہے؟ اس کا آنسر ہے الانسان. کوشچن نمبر 2, لمن الحمد, تعریف کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. کوشچن نمبر 3, من ہوا الاحد, من مانے کون, ہوا مانے ہے, احد مانے ایک, ایک کون ہے؟ اللہ. کوشچن نمبر 4, علی کم رکن بنی الاسلام, کتنے ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے؟ اس کا آنسر ہے خمس. خمس کے معنی ہے 5. کوشچن نمبر 5, ما ہوا التعلیم الہام فی سورۃ الاخلاص, سورہ اخلاص میں اہم تعلیم کس چیز کی ہے؟ ما کے معنی کیا, ہوا کے معنی ہے, التعلیم, الہام معنی اہم, اہم تعلیم کیا ہے فی سورۃ الاخلاص, سورہ اخلاص میں؟ التوحید, توحید کی تعلیم ہے. کوشچن نمبر 6, حل طاعت اللہ طاعت الرسول, حل آ گیا, اس کا آنسر نام. کیا اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم, ہاں, اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. یہ تھی بٹ نمبر 10. اس کے بعد ہم پڑھیں گے بٹ نمبر 11. یہ ہے بٹ نمبر 11 جس میں پیسج آئیں گے, اور پیسج میں سے ہی آپ کو کوشچنس کے آنسر لکھنا ہے. پیسج کے بعد نیچے 5 کوشچنس رہیں گے, ان کوشچن کے آنسرس آپ کو پیسج میں سے لکھنا ہے. دیکھیے, ریڈ دا فالوئنگ پیسج اینڈ آنسر دا کوشچنس گیون بلو ان عربک, عربک میں لکھنا ہے. اور یہ 5 مارکس کی بٹ ہے. یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں, ٹوٹل آپ کے عربک میں 3 پیسج ہے. سیٹ اے میں یہ جو ویڈیو چل رہی ہے, یہ گیسٹ پیپر سیٹ اے کا ہے, اس میں 2 پیسج ہے, اور سیٹ بی میں 1 پیسج ہے. بہتر ہے آپ فرسٹ اور سیکنڈ یاد کر لیں, انشاءاللہ ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک آئے گا. یہ آپ کے سامنے پیسج, کوشچنس پڑھیں گے, اس کے بعد آنسر میں انڈر لائن بھی کروں گا انشاءاللہ. این ذهب احمد, احمد کہاں گیا؟ اس کا آنسر دیکھیے, فرسٹ لائن, ذهب احمد الى المدرسہ, ذهب احمد الى المدرسہ, احمد مدرسے کو گیا. یہاں پر بھی وہی آنسر ہے. دیکھیے, ذهب احمد الى المدرسہ. آپ کو اگر سمجھنا ہے پیسج میں تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں, احمد مدرسے کو گیا. کوشچن نمبر 2, هل فهم احمد درس الامس, کیا احمد کل کا لیسن سمجھا تھا؟ حل آ گیا, اس کا آنسر ہے نام. اب ہم کو وہاں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, حل آ گیا, بس آپ حل ہٹا دے کے نام لکھنا ہے, کاما, اس کے بعد سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. کوشچن نمبر 3, من فریحا, من مانے کون, فریحا مانے خوش ہوئے, کون خوش ہوئے؟ اب پیسج میں دیکھیے فریحا کہاں ہے, فریحا جہاں ہے وہ اس کا آنسر ہے. فریحا الاستاد, جی دیکھیے یہاں پہ فریحا الاستاد, استاد خوش ہوا, یہ آپ کو آنسر لکھنا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 4, حل احمد طالب مجتہد, حل آ گیا, اس کا آنسر نعم ہے. تو یہاں پر بھی ہم کو پیسج میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, حل ہٹا کے نام لکھنا ہے, باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. ہاں, احمد ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے. کوشچن نمبر 5, ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ماذا ہٹا کے آپ دیکھیے قال رسول اللہ پیسج میں کہاں ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. یہاں ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما, یہ پورا آنسر لکھنا ہے. دیکھیے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما, مجھے
ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ تھا فرسٹ پیسج جس میں 5 کوشچنس آئیں گے جس کے آنسر آپ کو پیسج میں سے ہی لکھنا ہے. شاید بٹ نمبر 11 کا پیسج یہ سمجھ میں آئے گا. اور ایک سیکنڈ پیسج ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر پیسج شروع ہو رہا ہے, اس میں چونکہ بتانا مشکل ہے کہ انڈر لائن کر کے, کیونکہ پیسج اوپر آ گیا اور کوشچن آنسر نیچے آ گئے. انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں یہاں پر ایک حل کا ہے اور باقی پڑھنا ہے. من یصل الی البیت, کوشچن نمبر 1 ہے من یصل الی البیت, گھر کو کون پہنچا, گھر کو کون پہنچا. اس کا آنسر ہے من ہٹا دیجئے, الابو, الابو یصل الی البیت, الابو یصل الی البیت, گھر کو باپ پہنچتا ہے. ایک پیسج ہے جس کا یہ آنسر ہے. گھر کون پہنچا, گھر کو کون پہنچتا ہے, گھر کو باپ پہنچتا ہے. کوشچن نمبر 2, ماذا سأل الاب ابنہ, ماذا مانے کیا, سأل مانے سوال کیا, الابو مانے باپ, ابن مانے بیٹا. باپ اپنے بیٹے سے کیا پوچھا, کیا سوال کیا. ماذا کوشچن میں ہٹا دے, سأل الاب ابنہ ماذا تفعل, باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو. کوشچن نمبر 3 حل ہے, حل کا آنسر نعم ہوگا. حل یلعب الاولاد بکرۃ القدم, کیا اولاد فٹ بال کھیلتے ہیں, بچے کیا بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں. حل ہٹا کے نام لکھنا ہے. نعم ہاں, یلعب الاولاد بکرۃ القدم, ہاں لڑکے فٹ بال سے کھیلتے ہیں. کوشچن نمبر 5, متى يكتب الولد فروض المدرسہ, متا مانے کب, یکتب لکھتے ہیں, ولد مانے لڑکا, لڑکا کب لکھتا ہے, فروض المدرسہ ہوم ورک, فروض المدرسہ کے معنی آتے ہیں ہوم ورک, لڑکا کب کرتا ہے, کب لکھتا ہے. متا کوشچن ہٹا دے, باقی سے ہم کوشچن کاپی کرنا ہے. یکتب الولد فروض المدرسہ قبل النوم, سونے سے پہلے لڑکا ہوم ورک کر لیتا ہے. کوشچن نمبر 5, من فتح الباب, دروازہ کس نے کھولا. من ہٹا دیجئے, الخادم لکھنا ہے, الخادم, باقی سے ہم کوشچن کاپی کرنا ہے. خادم نے دروازہ کھولا. اب میں آپ کو پیسج میں انڈر لائن کر کے بتاؤں گا کہ آنسر اس کے کہاں ہے. دیکھیے فرسٹ کوشچن ہے من یصل الی البیت, یہ ہے فرسٹ کوشچن کا آنسر, یصل الاب الی البیت. سیکنڈ کوشچن تھا ماذا سأل الاب ابنہ, سیکنڈ کا آنسر یہ ہے. وَيَسْأَلُ الْأَبُ ابْنَهُ مَاذَا تَفْعَلُ. تھرڈ کوشچن حل کا تھا تو وہ ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حل ہٹا کے نام لکھنا ہے. فورتھ کوشچن تھا مَتَى يَكْتُبُ الْوَلَدُ فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ, مَتَى يَكْتُبُ الْوَلَدُ فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ, اس کا آنسر یہ ہے يَكْتُبُ الْوَلَدُ فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ, فروض المدرسہ قبل النوم, سونے سے پہلے لکھ لیتا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 5, من فتح الباب, دروازہ کس نے کھولا, یہ ہے یفتح الخادم الباب. تو یہ 4 کوشچن کا آنسر ہے. پانچواں ایک تو نام کا ہے, اس وجہ سے یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ 2 پیسج تھے جو بٹ نمبر 11 میں آئیں گے جس کے آنسر آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے بٹ نمبر 12. بٹ نمبر 12 تو بہت ہی آسان بٹ ہے, بہت ہی آسان, اور آپ دیکھ کر تعجب کریں گے کہ بٹ نمبر 12 مارکس کی ہے. اس میں کرنا کیا ہے, آئیڈینٹیفائی نومینل سینٹینس, عین ثلاثت جمل من الجملۃ الاسمیہ, جملے اسمیہ کے 3 سینٹینس آئیڈینٹیفائی کریے, پہچانیے کون کون سے سینٹینس جملے اسمیہ ہیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے, انشاءاللہ آپ ایک طریقہ بتا دیا جائے گا تو آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. پہچاننے کا ایک طریقہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں, اسٹارٹنگ میں
सेंटेंस के स्टार्टिंग में अलिफ लाम है या नहीं वो देखिए। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में अलिफ लाम है तो समझना है कि वो जुमले इस्मिया है। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर अलिफ लाम है, देखिए अलिफ लाम आ गया तो समझ जाना वो जुमले इस्मिया है। यहाँ पर भी अलिफ लाम आ गया तो ये भी जुमले इस्मिया है। खालिद, स्टार्टिंग में नाम भी हो, दो चीजें पहचानने के, स्टार्टिंग सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर अलिफ और लाम है तो जुमले इस्मिया, या सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड नाम है तो भी जुमले इस्मिया। अल उस्ताद अलिफ लाम जुमले इस्मिया, अत्ताम अलिफ लाम जुमले इस्मिया, खालिद अलिफ नाम जुमले इस्मिया, खराअत 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 अत्तालिबतु अल मजल्ला, यहाँ पे खराअत ना शुरू में स्टार्टिंग में अलिफ लाम है और ना ही ये किसी का नाम है तो ये जुमले इस्मिया नहीं है, इसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे आंसर आपके सामने है, अल उस्ताद शफीकुन अल जुमला अल इस्मिया। और ये अल जुमला अल इस्मिया कहां से लिखना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए अल जुमला अल इस्मिया। क्वेश्चन नंबर 2, अत्तामु लजीजुन अल जुमला अल इस्मिया, खालिद तालिबुन अल जुमला अल इस्मिया, खराअत अत्तालिबतु अल मजल्ला, ये जुमला इस्मिया नहीं है तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जो जुमले इस्मिया है सिर्फ उसी को लिखना है, बाजू में जुमला इस्मिया लिखना है। शायद बिट नंबर 12 समझ में आ गई, जो कि 12 मार्क्स की है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 13। बिट नंबर 13, पिक अप एनी 3 प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी बहुत आसान है, प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करना है। प्रीपोजिशन दो तरीके से मैं समझाऊंगा। एक तो तरीका ये है कि आप इसमें जो प्रीपोजिशन है वो याद कर लें, इंशाल्लाह ऐसे ही आएंगे सेंटेंस। और एक तरीका है इबारत में, सेंटेंस में जो सबसे छोटा लेटर रहता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं, उसको अंडरलाइन करना है। हाजी ही अल इबारा मिनद दर्स, अल जवाल अल फिल जैब, जाअतिल मुदीरतु बिस्सय्यारती, सजदल इमाम फिल मस्जिद। नीचे आंसर लिखे हैं देखें, हाजी ही अल इबारतु मिनद दर्स, मिन, पूरा सेंटेंस लिख के आप प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करें, जैसे यहाँ पे है, ये भी सही है। या नहीं, ये सेंटेंस कॉपी कर लें आंसर शीट में और बाजू में उसका आंसर लिख दे मिन, ये भी सही है। सेकंड, अल जवाल फी अल जेब, इसमें प्रीपोजिशन है फी। तीसरा एग्जांपल है जाअत अल मुदीरतु बिस्सय्यारा, इसमें बा प्रीपोजिशन है। उसके बाद सजदल इमाम फिल मस्जिद, सजदा माने सजदा करना, इमाम नाम इमाम, फी अल मस्जिद, इमाम ने मस्जिद में सजदा किया, इसमें फी प्रीपोजिशन है। ये बिट भी शायद आसान दिखी आपको, ये भी 6 मार्क्स की है, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम पढ़ना है बिट नंबर 14। बिट नंबर 14 इंशाल्लाह आपके लिए ये भी बहुत ही आसान रहेगी, और ये भी बिट नंबर 14 6 मार्क्स की है। और इसमें फाइंड एनी 3 वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ सेंटेंस लिखे हुए रहेंगे, उन सेंटेंस में वर्ब कौन सा है पहचानना है। वर्ब, VERB, वर्ब कौन सा है आपको पहचानना है। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको। एक बहुत आसान तरीका, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड वर्ब रहता, बस इतना याद रखना। हर वर्ड, फर्स्ट सेंटेंस में ये वर्ड, सेकंड में भी ये, थर्ड में ये, फोर्थ में फहीमा, फिफ्थ में यदखुलु, सिक्स्थ में अंसुरु। अगर इसके अलावा आ जाए, नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसके अलावा आ जाए तो उसके पहचानने का एक और तरीका है। वो तरीका है कि उसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं आता, उसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं आता, तो समझ जाना वो वर्ब है, उसको आप आइडेंटिफाई कर लेना। नीचे लिखा हुआ है आंसर, ये तो क्वेश्चन है, आगे देखेंगे हम आंसर लिखे हुए हैं बिट नंबर 14 के। ये है आंसर। फहिमतु सूरतल अस्र, फहिमत अल मुहंदिसतु सूरतल अस्र, दखलत अत्तालिबतु अल फस्ल, फहिम यासिर सूरतल अस्र, यदखुलु अत्तालिब अल फस्ल, उनसुर अत्तालिबा। तो ये जितने भी है स्टार्टिंग वर्ड वो वर्ब है, तो उसको अंडरलाइन कर देना है आसानी के साथ। उसके बाद बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 भी बहुत ही आसान है। बिट नंबर 15 में कुछ इस तरह के वर्ड लिखे हुए रहेंगे और इनके स्टार्टिंग में ता रहेगा।
वो ता हटा के अलिफ लिख देना है, बस उतना ही है। अलिफ हमजा, जैसे मिसाल देखिए यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग में देखिए ता, हर एक की स्टार्टिंग में ता, यहाँ भी ता, सब में ता है। अब आपका काम ये है आंसर। अच्छा देखें, एक बात याद रखेंगे, ये जितने भी वर्ड है उसको अपने आंसर शीट में कॉपी करें, उसके बाद आंसर लिखें बाजू में। ता हटाना है, अलिफ लिखना है, अलिफ हमजा, ता हटाना, अलिफ हमजा, सब में वैसे ही। शायद आपको बात समझ में आएगी। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जितने भी वर्ड रहेंगे, वर्ड के स्टार्टिंग में ता रहेगा, वो ता हटाना है, अलिफ लिखना है, जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस इतना ही है। और ये 6 मार्क्स की बिट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 6 मार्क्स की बिट है। उसके बाद बिट नंबर 16, ये भी बहुत ही आसान बिट है। इसमें भी ऐसे ही कुछ वर्ड आएंगे, तंसुर, तजहब, तरजा, तक्तुब, तजरिब, तमना, कुछ वर्ड्स आएंगे। इन वर्ड्स के स्टार्टिंग में लाम अलिफ ऐड करना है और कुछ नहीं, ना कुछ हटाना है ना कुछ और काम है, बस ये ता है। हर एक के शुरू में, हर फेल के शुरू में, हर वर्ड के शुरू में लाम अलिफ ऐड करना है, बस इतना ही काम। ये थी आपकी बिट नंबर 16, जो कि 5 मार्क्स की है। ये बिट नंबर 16 5 मार्क्स है। ये था आपका मॉडल पेपर, गेस मॉडल पेपर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अरबिक का। और ये सेट ए का था। इसी तरह सेट बी का भी मॉडल पेपर, गेस मॉडल पेपर है। आप 2 पेपर जरूर पढ़ लें, उन दोनों में से आप यकीनन आपको पूरे आंसर आपको मालूम हो जाएंगे। और अगर 2 पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह 99 आपको आसानी से हासिल हो जाएंगे। और समझ में आया या न आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि हमको ये चीज समझ में नहीं आई, या अल्हम्दुलिल्लाह हमको हर चीज समझ में आ गई। और सेट बी की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।